कुलद्वीप का महात्मा ये है, वो दिव्यांग परिक्रमा अपराध भंजन पाठ। वहाँ पर जो महाप्रभु कुलद्वीप में था, वही ब्राह्मण जाके उनसे माफी मांगा। तब तो महाप्रभु के अपराध भंजन पाठ है, जो विष्णु का चरण में उनका पाठ जाकर वही तुमको उद्धार कर दूसरे। शिवास पंडित is so much the dearest of Chaitanya Mahaprabhu. Sivas Pandit is one Brahman.
circumambulate 4 times. And we also hold discourses. This time it is high time, you should move, you should move. All the temples will be closed like that. क्या किया जाए? अभी जहाँ पर आए हैं चैतन्य मठ, चंद्रशेखर आचार्य भवन का ग्रंथ রসায় নিমাই পণ্ডিতের মেসমশাই ছিলেন। निमाय पंडित का मेसो महाशय अर्थात सची माता का बहन का पति। मुस्लिम क्या बोलता है हिंदी में? बट देयर इज नो सच वर्ड देयर इन English. This is uncle. This is uncle. Uncle? Master. Maternal. Maternal uncle. Mama. They have to explain who's that, whose uncle is. Mother's side or father's side. No, mother's side. Yeah, that's what. There was sister of Sachi Mata. Is there. But actual relation is the Chandrasekhar Acharya, the personal associate of Chaitanya Mahaprabhu. This is worldly relation. Worldly relation we can speak like this. But actually they are all personal associates. They are related to Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. ब्रजपत्तन नामे प्रसिद्ध। ये ब्रजलीला किया है यहाँ पर, नाटक, यहाँ पर नाटक हुआ। नाटक में भी ऐसे बात है थोड़ा चिंता करने, विशेष चिंतार विषय। এখন মহাপ্রভু বললেন যে আমি লক্ষ্মী মূর্তি ধারণ করে নৃত্য করব, কিন্তু যারা জিতেন্দ্রিয় তারা দেখবার অধিকারী, যারা জিতেন্দ্রিয় নয় তারা দেখবে না। অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত তারা দুঃখিত হলেন, আমরা তো জিতেন্দ্রিয় নয়, আমরা কি করে দেখব? তো তারা বললেন মহাপ্রভুর কাছে, আমরা জিতেন্দ্রিয় নয়, সুতরাং আমরা এই দর্শন করবার অধিকারী। অদ্বৈতাচার্য যিনি তুলসী আর গঙ্গা জল দিয়ে পূজা করে হুঙ্কার করে গোলকপতি শিহরিকে নিয়ে আসলেন, এতখানি শক্তি ধারণ করেন। তিনি বলছেন যে শর্ত দিয়েছেন মহাপ্রভু লক্ষ্মী বেশি নৃত্য করবেন, যারা জিতেন্দ্রিয় তারা দেখবেন। তা আমরা তো জিতেন্দ্রিয় নই। शिवास पंडित नारद जी का अवतार, हम जितेंद्र नहीं है, हम कैसे देखेंगे? You understood? You see, here in Chandrasekhar Acharya Bhavan, here Chaitanya Mahaprabhu, he said, now I shall play the pastimes of Lakhi Devi. I shall dance by taking the form of Lakhi Devi. Dance. Those who have got control over the sense organs, those who have conquered the sense organs, they will be eligible to see this. They will be entitled to see this. Then Advaitacharya and Srivas Pandit, they become dejected. We have got no control over our sense organs. We are slave of sense organs. So how we can see? We are deprived. Advaitacharya, by worshipping with the water of the Ganges and basil leaf, and he has brought
Golokpati here is original Bhagavan here. What he is saying, I am not entitled, but I am slave of sense organs, by whose grace we can conquer sense organs. He is saying like this. If anybody says that I have got the ability to control sense, yes, with vanity, then he will not be entitled. When Shiva Pandit and Adhyacharya say, we have got no control over sense organ, we are slave of sense organ. Now, how we can have the right, we are entitled to see your dance as Lokhi, because you have imposed this condition, we cannot fulfill. Then Chaitanya Mahaprabhu said, by my grace, you will be able to conquer all sense organs. You will be able to conquer. Then they are allowed. So we have to think the significance of this. When we shall have vanity, we are not entitled. When we shall have humbleness, yes, you are entitled. You can see. Then he can get the grace of Supreme Lord. That quality. And after that, again, Narad, Srivas Pandit played the pastimes of Narad. Narad Goswami, he gone in search of Krishna. I went to Vrindavan, Brajodham, and after searching, I could not see Krishna there. Krishna was not there. I heard that Krishna is now in Navadvip as son of Sati Devi, Jagannath Mishra. They are one with Jashoda Devi and Nandamai. Can you understand this? After that, I shall have to come back to this Navadvip Dham to see Krishna. By seeing his drama, he may say drama. Sati Mata fainted, became unconscious. And Haridas Thakur played the pastimes of Kotal, guard, giving warning to others. Get up, get up. These things. Kotal. In this way. And at that time, when Chaitanya Mahaprabhu said, now I shall play the pastimes of Rukmini. I shall play the pastimes, drama of Rukmini. And with Rukmini, Chaitanya Mahaprabhu was writing a letter to Krishna and was weeping as Rukmini. All these pastimes he has done here. Ultimately, you have already heard that when all the devotees, they are very much mentally they are dejected, and by seeing are very much glad by seeing the Bhagavati Murti of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya took the form of actually Yogamaya, Mahamaya. Some they are saying
He is, she is not now a he. She is Mahakali, she is Sita, she is something like that. According to their vision, they are saying. And ultimately, she became Mahaprabhu. Pangs of suffering, separation, grief. So took them all in her flank, in his flank, or in her flank now, and suckle them breast as Bhagavati. So much affection, Chaitanya Mahaprabhu, for the devotees. Anything he can do. Brajapattan, ব্রজলীলা কিয়া এই স্থানে মহাপ্রভু দেবী ভাব ব্রজলীলার নাটক অভিনয় করেছিলেন বলে এই স্থানকে ব্রজপত্তন বা অপর ভাষায় বরজপোতা বলা হয়। This place is known as Brajapattan, as Chaitanya Mahaprabhu has played the pastimes of ব্রজলীলা, বরজপোতা। এই প্রসঙ্গে চৈতন্য ভাগবত মধ্য অষ্টাদশ অধ্যায়. Oh, you go through this 18th chapter, this Madhya Lila, you see, then you will get in detail. এই স্থানে জগৎগুরু ওম বিষ্ণুপাদ ভক্তি বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থানকালে একটি দ্বিতল পাকা ভজন কুটি নির্মাণ করাতো। একটা কঠোর বৈরাগ্যের সহিত অবস্থান করে 17টি মহামন্ত্র नामयज्ञ उद्यापन चैतन्य चरितामृत अनुभाष रचना दिया भी मेल ओबेशन से हम लोग जो वहाँ दंडवत प्रणाम किया वहाँ भी बंद हो गया। वहाँ पर वो हम लोग वहाँ पर मेरा भी वहाँ ठहरने के लिए मौका मिला था। हमारा गुरुजी भी ठहरता है, श्रवण महाराज, श्रवण गोस्वामी महाराज। वो श्रवण गोस्वामी महाराज का अंडर में हम था। वो हम श्रवण गोस्वामी महाराज हमको शिक्षा दिया कैसे प्रूफ देखने पड़ता है, कैसे पंचांग लिखने पड़ता है। श्रवण गोस्वामी মায়াপুরে চৈতন্য মঠে অনেকটি দূরে শ্রীপাঠ অবস্থিত। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় ভক্তগণকে করেন।
অনেক সেবা করেছিলেন। জয় শ্রীরাম মতো উচ্চারণ করতে করতে তিনি দুর্লভ হয়ে গেল, হয়ে একটা জলপত্র দাঁতে করে উঠলো। और भावना जी जगह साफ है, आप यहीं बैठा देना। আপনারা কিছু সময়ের জন্য যেখানে হোक ওদিকে বসুन, এদিকে बसुन, इधर बैठे उधर बैठिए, जहाँ बैठिए, थोड़ा यहाँ ही बैठने पर का ऐसा नहीं, दर्शन करके उधर जाके बैठिए, कोई बात नहीं। बहुत जगह है। मुरारी गुप्ता, मुरारी जिनका शरीर के अंदर में, छाती के अंदर में गुप्त है, मुरारी गुप्त है। छाती का अर्थात निजेर बुकटा फेरे सीताराम देखे के हनुमान, मुरारी गुप्त बने हनुमान, जिन्हें रामलीला है बजरंग जी हनुमान, जिन्हें गौर लीला है मुरारी गुप्त। যখন মুরারি গুপ্ত আমরা যেখানে শ্রীবাস অঙ্গনেতে সেখানে সাতপ্রহরিয়া ভাব অর্থাৎ 21 ঘন্টা ভগবান স্বরূপিতে নিজেকে দেখিয়েছেন। মুরারি গুপ্তকে রাম স্বরূপে দেখেছে, তার ইচ্ছা পূর্তি করেছে। সবই অবতারই, ভগবানের সব অবতার আছে। যার যেটা অভীষ্ট সেটা তিনি মহাপ্রভুর কাছ থেকে পেয়েছেন ওই শ্রীবাস অঙ্গনে। তো মুরারি গুপ্ত এখানে থাকতেন, মহাপ্রভুর কাছে যেতেন, মহাপ্রভু তাকে উপদেশ করলেন, দেখো আমার ইচ্ছা তুমি কৃষ্ণ উপাসনা করো, নন্দনন্দন কৃষ্ণ, তার উপাসনাতে সর্বপ্রকার রস পাওয়া যায়, সমস্ত সম্বন্ধ নন্দনন্দন কৃষ্ণেতে আছে, যে ভগবানের অন্য স্বরূপে পাওয়া যাবে না। এই জন্য আমার ইচ্ছা তুমি নন্দনন্দন কৃষ্ণের উপাসনা করো, সর্বোত্তম উপাস্য। অনেক শাস্ত্র প্রমাণ যুক্তি দিয়ে বুঝালেন, শুনলেন, শুনে মহাপুরুষকে তিনি রাম রূপে দেখেন। যখন
মহাপ্রভু আদেশ করছেন তো রামেরই আদেশ, ঠিক আমি তাই করব। বাক্য দিলেন। ঘরে এসে তার আরাধ্য দেব হচ্ছেন সীতারাম, সীতার পাদ নিজেকে সমর্পণ করেছেন। সেখান থেকে আমি নিজেকে কী করে উঠাবো, উঠিয়ে এখন রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কী করে করব, উঠাতে পারছেন না। আর মহাপ্রভুর কাছে বাক্য দিয়েছেন, মহাপ্রভু বাক্য পালন না করলি তাহলে অপরাধ কোন দিকে যাবে। এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই, আত্মহত্যা করবে, ঠিক করবে। পরদিন যখন গিয়েছেন তখন মহাপ্রভু দেখলেন প্রত্যেক দিন খুব আনন্দে থাকে, কীরকম ব্যাপার, তাকে খুব দুঃখী দেখছি, অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণ। কি ব্যাপার, কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে? চুপ করে আছেন। কি হয়েছে তোমার? না, আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি নাই, আমার মৃত্যু সেও। আমি বলছিলাম আমি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করব, কৃষ্ণের উপাসনা, কিন্তু আমি নিজেকে দিয়ে দিয়েছি রামচন্দ্রের পাদ পদ্মে, সেখান থেকে উঠাতে পারছি না। আর আপনার আজ্ঞা পালন না করলে আমার অপরাধ হয়, তাহলে আমার মৃত্যুই সে। মহাপ্রভু বলছেন দেখো আমি জেনে শুনেই তোমাকে বলেছিলাম, তুমি হচ্ছে রামচন্দ্রের নিত্য সেবক, তুমি রামদাস, রাম তোমার উপাস্য, उपास्य निष्ठा ना होले प्रेम है ना। आप लोग तो सिर घुमाता है तो बांग्ला समझ लिया और हिंदी बोलने का जरूरत नहीं नहीं ये तो समझ आ गया। अभी यहाँ पर महाप्रभु तो भक्त भाव लेके आया, लेकिन जब सन्यास लेके चले जाएंगे, महाप्रभु का मालूम है जैसे भगवान का भक्त में प्रीति है, भक्त का भगवान में प्रीति है, वो विरह सहन करना कितना कठिन है उनका मालूम है। अभी तो मैं तो सन्यास लेके चला जाऊंगा, ये लोग जिंदा रहेगा कैसे? इससे पहले इनको अपना स्वरूप दिखा देंगे। 21 घंटा श्रीधर और मुरारी गुप्ता सबको बुलाया, आओ एकदम, और कोई माया विस्तार नहीं करेंगे जो मैं भक्त हूँ ऐसा नहीं, मैं भगवान बहुत स्वरूप प्रकाश कर राज राजेश्वर्य ऐश्वर्य तमाम सबको बुलाया, अपना रूप दिखाया। मुरारी गुप्ता को भी राम रूप दिखाया। अभी उसका पहले ये तो शिवा संगम में ऐसा किया, पहले उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए मुरारी गुप्ता को कहा देखो मेरा उपदेश तुम्हारे ऊपर है, तुम कृष्ण उपासना करो, नंदन कृष्ण। नंदन कृष्ण की उपासना में हर किस्म का आनंद मिलता है। तत्व में सब एक ही है, लेकिन रस में फर्क है। इसलिए रस में सर्वोत्तम रस है नंदन कृष्ण। मेरे यही उपदेश तुम्हारे ऊपर है, तो कृष्ण को उपासना करो, शास्त्र प्रमाण युक्ति से समझाया, वो मान लिया, ठीक है आपकी आज्ञा है। इसलिए उनको अपना राम रूप से देखता है, उनकी आज्ञा तो पालन करना चाहिए। राम जी आज्ञा कर रहा है, वो देख रहा है राम जी है, ठीक है, जो प्रभु आज्ञा किया ठीक है हम करेंगे। घर में आके उनका अपना आराध्य देव सीताराम है, वहाँ से अपने सिर को उठाने के लिए उनका दिल में बहुत दुख होने लगा, मैं कैसे सिर को उठाऊं।
और महाप्रभु के पास जबान दिया। महाप्रभु का जबान जब पालन नहीं करेंगे तो महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मेरा जिंदा रहने की क्या जरूरत है? मरना है अच्छा, खुदकशी करना है अच्छा। ऐसा उनका दिल में मैं क्या करूं? तब महाप्रभु के पास जब आया, महाप्रभु देखा मरी गुप्त तो बहुत दुखी है। क्या बात है, तुम इतना दुखी किस लिए? न मेरा मरना अच्छा। क्यों मरना अच्छा? न आपकी आज्ञा पालन नहीं कर। क्या आज्ञा? आप मुझे आज्ञा किया कृष्ण भजन करने के लिए, मैं जबान दिया। घर में जब पहुंचा तब मेरा इष्ट देव को देखा, मेरा आराध्य देव सीता, उनसे मेरा सिर को कैसे उठाने में मेरा दिल टूट जाता है। और आपकी आज्ञा पालन नहीं की अपराध है, इससे मेरा मरना अच्छा है। अभी महाप्रभु बोला, देखो तुम किस लिए चिंता करो, तुम नित्य रामदास हो बोले से लिख दिया। तुमका निष्ठा परीक्षा न श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा नहीं तो मम सर्वस्व राम कमल लोचन हनुमान जी को दिया है। श्रीनाथ लक्ष्मीपति नारायण राधापति कृष्ण जानकी नाथ तत्व में एक ही है। भगवान बहुत नहीं है, पूर्ण कभी बहु नहीं होता है, पूर्ण एक ही है। लेकिन पूर्ण का लीला है, बहुत किस्म का लीला है। कितना लीला शास्त्र में वर्णन है, अनंत लीला है। शास्त्र में थोड़ा ही लीला वर्णन है। एक राम लीला है, एक कृष्ण लीला है, एक नारायण लीला है, वैष्णव गौ लीला है, मत्स्य मनुष्य में कितना लीला है। तत्व में एक है, रस में फर्क है, लीला में फर्क है। तो एक ही है, तब भी जब भी एक ही है, लक्ष्मीपति नारायण राधापति कृष्ण और सीतापति राम एक ही है, तब भी मेरा राम कमल लोचन, मेरा सर्वस्व राम। इस प्रकार निष्ठा इष्ट देव में होना चाहिए, नहीं तो प्रेम नहीं होगा। बहुत में प्रेम नहीं होता है। अनन्य भक्त सर्वोत्तम है। अभी लक्ष्मी नारायण को उपासना करते हैं, सीताराम को उपासना करते हैं, राधा कृष्ण भक्त है, लेकिन जो अनन्य भक्त है वो एक को ऊपर करते हैं। एक को तो उसमें प्रेम ज्यादा होता है। इसलिए जब हम कृष्ण उपासना करेंगे अनंत रूप से करेंगे, उसमें भगवान की उपासना हुआ, सर्वोत्तम रस मिला और हर एक की सेवा हो गया। और रामचंद्र की कृपा से ही दंडवत ऋषियों को कृष्ण को पति रूप से मिल गया। दंडवत ऋषियों ने रामचंद्र को पति रूप से सेवा करने की इच्छा की। रामचंद्र बोल दिया, ये लीला एक पत्नी प्रताधर, दूसरा पत्नी हम नहीं लेंगे। नीति शिक्षा कर लिए मेरा लीला है, नीति का प्रतीक लीला। अब लीला में किसी का अधिकार नहीं है। जब तुम्हारा मुझे पति रूप से सेवा करने की इच्छा है, माए जब ब्रज में कृष्ण रूप से जन्म ले लो, गोपी गृह में, तो हम लोग गोपी गृह में जन्म ले, गोपी का अनुगत्य में मुझे कृष्ण स्वरूप में मिलेगा। बात तो एक ही है, क्या है? इसलिए वही मुरारी गुप्ता, उनको उनसे इष्ट निष्ठा मिलता है। और एक क्या है, एक दफे मुरारी गुप्ता यहाँ पर कृष्ण को भोग दिया, एक राम जी को गौरांग महाप्रभु को भोग दिया। गौरांग महाप्रभु भोग दिया कैसे? ऐसा ना जो उनका सौधर्मिन्य है वो बनाया, घी घृतान्न बहुत अच्छी तरह से बनाया। वो घृतान्न फेंक के दिया ऐसा मठ गौरांग महाप्रभु खिलाने के लिए, मंत्र से जैसे हम लोग दे सने। और
आओ आओ आओ। और महाप्रभु वहाँ पर नहीं आए, महाप्रभु का उद्देश्य में दिया। महाप्रभु का पेट का बीमारी हो गया, खाया नहीं, महाप्रभु दूसरे स्थल में, महाप्रभु का पेट का बीमारी हो गया, घृतान्न न खाने, ज़्यादा खाने से होता है। तो महाप्रभु आ गया, तुम जो जितना चीज दिया मेरा पेट में दर्द हो गया, अब ये दर्द कैसे ठीक होगा? वो दर्द, पेट का दर्द, उसका दवाई क्या है? मुरारी गुप्ता दुनिया का डॉक्टर भी है, वो वैद्य, संसार से मुक्त कर देगा हनुमान जी, और दुनिया के बीमारी बच्चे यहाँ कर जो पानी पी रहे, उनका हाथ का जो पानी, मुरारी गुप्ता का हाथ तुम दियो पानी, एक गिलास खा ले सब बीमारी ठीक हो। यहाँ आया तो पानी पी ले, बीमारी सब ऐसा है। वो मुरारी गुप्ता, हनुमान और खगवती गरुड़ एक ही है। शिवा संगन में महाप्रभु चिल्लाया गरुड़ गरुड़ गरुड़, और मुरारी गुप्ता गर्जन करते करते गरुड़ से आए। नारायण के पास वो गरुड़ है, राम जी के पास हनुमान। फर्क नहीं है, लीला में फर्क है। और महाप्रभु उनके पीठ में बैठ गया और ऐसा घुमा सेवा। हनुमान जी सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार है, अपना दुख को परवाह नहीं किया। जब भी राम जी का जो सेवा है एकदम खराब, सारा सारा मुसीबत अपना हाथ में, और मैं तो सेवक हूँ, मुसीबत तो भाग जाता है, जहाँ सुविधा है वहाँ चला जाता है। लेकिन वो जो है मुरारी गुप्ता हर वक्त भगवान की सेवा के लिए सब कुछ सहन करके उस मुसीबत में आ गया सेवा कर, इसलिए राम जी उनका वशीभूत हो गया। सभी तो सेवक था, लेकिन कोई छलांग मार के हम जा सकते, अंगद बोला हम जा सकते उस पर, कार्य सिद्धि होगा कि नहीं बोल नहीं सकता। बजरंग जी सब वैष्णव का बात, सब अंगद सुग्रीव सब वैष्णव है, सबका बात सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप है। सब जाके बजरंग में, आप जाने से होगा, क्यों आप जाने से होगा नहीं, हम जा सकते हैं, छलांग मार सकता है 100 जोजन, लेकिन काम सिद्धि आप है। सब वैष्णव बोल रहा है ठीक है मैं जाऊँ, सब वैष्णव बोल रहा है ठीक है मैं जाऊँगा, और भगवान उनका पीछे में है, सेवा करने का पवित्र शक्ति भी आया। यही पहले हम लोग का जो हार्ट का बीमारी हो जो हो, यहाँ पर पानी पीने से सब ठीक हो जाए। डॉक्टर क्या करेगा? ठीक है
একটা আসলো। এই মন্দিরটার উপরে শর্ট কেটে দেবো। सबसे पहली गाली हमारी ब्रिज में गाली ले এরা বোধহয় পরিক্রমা শুরু করলো। আজ থেকে তাহলে অনেক দল শুরু করে। প্রেমের ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর রোজি 1 মিনিট সাইড সে এই পর্দাটা ধরো। ইয়ারে বলিব যে কাজের তোরে এনেছিলেন জগতে আমারে ইয়ারা বলিব যে কাজের তোরে এনেছিলেন জগতে আমারে এতদিন পরে কহিতে সে কথা দিন পরে কহিতে সে কথা খেতে দুঃখে হয় সারা খেতে দুঃখে হয় সারা দুঃখে কাজে হয় নবী সহিতারা হয় নবী সহিতারা হয় নবী সহিতারা পাতকি রে তুমি কৃপা করো নাকি জগন্নাথ ছিল যে পাতকি ওর হে বাবারো নাকি সদাই মদাই ছিল যে পাতকি তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর আজে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর পাপিকে তারা তুমি পাপিকে তারা তুমি পাপিকে তারা তুমি পাপিকে তারা তুমি
আর ইসকন থেকে এটা করেছে। এখান থেকে আমরা সেটা স্মৃতি করব। আমরা এখান থেকে রুদ্রদ্বীপ যেতাম, এখন রুদ্রদ্বীপটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, গঙ্গা ভেঙে নিয়েছে, রুদ্রদ্বীপ আরো দূরে चले गए। ये भरतदास टीला पहले इधर था, इधर से हम रुद्रद्वीप जाते थे। रुद्रद्वीप तो गंगा गर्भ में चला गया, नया स्थान पर हुआ, वो भी आप लोग देखा, जहाँ नया स्थान पर मंदिर भी सब कुछ हुआ। वो आखिरी का दिन में हम लोग जाएंगे। यहाँ से हम लोग भरतदास टीला का बारे में याद करेंगे। Bharatdas Tila was previously here. There was a big tree, but that tree disappeared. Not from ISKCON, they have made this to make us remember the place. For that reason, we have got this opportunity to sit here, and we shall hear the glory of the Bharatdas Muni and Bharatdas Tila from Navadham Mahatma, written by Bhaktivinoda Thakur. और यहाँ पर हम लोग कभी भरद्वाज है कहाँ? भारद्वाज जी किया, तो इसलिए यहाँ पर ISKCON से किया है, इस स्थान का याद करने के लिए। तब हम लोग यहाँ बैठने के लिए मौका मिला। पहले जो भक्तिविनोद ठाकुर लिखा उसको हम लोग पाठ करेंगे। बिल्लपक्ष छारी प्रभु लये भक्तगण, भरतदास टीला ग्रामे करे आरोहण। नित्यानंद बोले এই স্থানে মুনিবার, আইলেন দেখি তীর্থ শ্রী গঙ্গা সাগর। হেথা শ্রী গৌরচন্দ্র করি আরাধন, রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন। তার আরাধনে তুষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর, নিজ রূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর। মুনিরে বলিল তব ইষ্ট সিদ্ধ হবে, আমার প্রকটকালে আমারে দেখিবে। এই কথা বলি প্রভু হইল অন্তর্ধান, ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে হইল জ্ঞান। কদিন থাকি এই টিলার উপর, অন্নতীর্থ দর্শনে গেলাম মুনিবর। লোকেতে ভারী ডাঙ্গা বলে এই স্থান, মহাতীর্থ হয় এই শাস্ত্রের বিধান। বলিতে বলিতে সবে যায় मायापुर, अकबरी लय सबे ईशान ठाकुर। टीला में आया नित्यानंद प्रभु उस स्थान का महात्म वर्णन कर रहा है। कहते हैं ये स्थान मुनिवर आइलेन देखी तीर्थ गंगा सागर, गंगा सागर तीर्थ देख के उसके बाद यहाँ पर आया, तीर्थ भ्रमण में है भरद्वाज मुनि। अधाई घाट और बारकोना घाट, बहुत घाट है, लेकिन घाट यहाँ पर गंगा है। गंगा को भी हम नहीं देख रहा है, घाट भी नहीं देख रहा है, तो कैसे होगा? घाट प्रेम नेत्र से देखा जाएगा। सब यहाँ है, लेकिन ये आंखों से नहीं देखा जाता है। এখানে রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তো এখানে লিখেছে, এখানে লেখা আছে। ঘাটের মধ্যে প্রথম হচ্ছে বিদ্যশিব ঘাট। মহাপ্রভু ধামেতে যদি প্রবেশ করতে হয় ক্ষেত্রফল শিবের কৃপা গ্রহণ করতে হয়। এখন শিব কিছুদিন ওখানে থাকবে নবদ্বীপ শহরে, সেখানে শিবশক্তি পরমাতলা আছে এবং বৃদ্ধ শিব মানে জ্ঞানী শিব। বৃদ্ধ মানে জ্ঞানী, জ্ঞানেতে বৃদ্ধ। राधाई नित्यानंद प्रभु पर आघात किया, जगह बाधा दिया,
तो आघात भी किया, जो नित्यानंद को आघात किया उनको ही नित्यानंद प्रभु उनके लिए गौरांग महाप्रभु का पाक पद में प्रार्थना किया। आखिर में उनका पश्चाताप हुआ, मैं बहुत गंदा काम किया, और सुदर्शन चक्र आया था मारने के लिए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र को रोक दिया नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का पाक पद में। तो जिनको हम मारा वही हमको रक्षा किया। वो बहुत रोने लगा। जब उनका उद्धार हुआ तब कहते मेरा अपराध जो हुआ वो अपराध को सोच के रोते थे और उनका स्तव करते। नित्यानंद कहते देखो चिंता मत करो, एक घाट को साफ करो फावड़ा से। कुदाल को क्या कहते हैं? कुदाल समझता है कि नहीं? कुदाल समझता है? कुदार पतली होती है, बांग्ला पतली वाली होती है। ब्राह्मण था, बहुत डाकू का बागी था, शराबी था, तो उनको उद्धार किया नित्यानंद को। और मधाई घाट, उसका साथ में और एक घाट है, वो होता है बाराकोना घाट। बाराकोना घाट मधाई घाट का 20 हाथ दूर में, बहुत घाट, थोड़ा थोड़ा दूर में से बहुत घाट। अब वही घाट को निर्माण किया विश्वकर्मा, इसलिए वही विश्वकर्मा होता है देवता का जो इंजीनियर आर्किटेक्ट है, वो उनका माफिक विश्वकर्मा का माफिक मिलना मुश्किल है। अभी वही विश्वकर्मा घाट निर्माण किया, तो बहुत चमत्कार घाट। तो वही घाट आप देख लो, जब आँख है तो देख लो कहाँ चमत्कार घाट। कोई घाट नहीं देख रहा है, देख रहा है कोई घाट। ये अच्छा है वो बुरा है, समझ देख रहे हैं? काम से देख रहे हैं। कान से देखेंगे, कान से कैसे देखेंगे? अब ये यहाँ देखो, वहाँ पर पंचतीर्थलिंग पंच शिवालय है, देख लिया? पंच शिवालय। जय हो भोले बाबा की जय। है भी है। यही घाट में अपराध विद्या के गर्भों में जो दिग्विजय पंडित आया था उनको परास्त किया। निमाई उनको परास्त किया, सारा दिग्विजय। So you are seeing the landing string, and if you can get the grace of Madhai, you can get the grace of Nityananda. Madhai Ghat, he is not a now demon, he is devotee. And after that, another Ghat, Barakona Ghat, is constructed by the architect of the heaven, Vishwakarma. You know Vishwakarma. And you see what type of ghat, so decent. Are you seeing? You have to differentiate amongst all these ghat. The Barakana Ghat is a speciality. It's constructed by Vishwakarma.